Students, hello students, let's discuss this river swimmer case. As you know, in the river, the velocity of river was changing as per the width. So if I consider this as x-axis, this is y-axis, the velocity is increasing till midpoint. Velocity is increasing till this midpoint P. Okay. So at this velocity is 0. Here the velocity is V naught for the river, and at this point again the velocity is 0. So if the boat, suppose if the swimmer starts from this end, let's say if the swimmer starts from this end, in what time he will cross the river? If V is the swimmer velocity, V is the velocity of swimmer. V is the swimmer velocity. Okay, V is the velocity of swimmer velocity. Okay, swimmer velocity, fine. And swimmer cross normal to the river flow. It is written in the equation that swimmer crosses normal to the river flow. So time taken to cross the river is very simple to calculate, as the swimmer always follow this path with respect to river. So the time would be simply 2d by how much? V naught. Now second part, we need to find out if the swimmer is following this path with respect to river. We know that the swimmer is going to be dragged along the direction of river flow. So he will go somewhere here. So his trajectory, if you observe, trajectory of the swimmer would be like this. He will somewhere land up in this position. Here he will reach. So we need to find out this distance. We need to find out this distance d, and also trajectory of the paths. So how to deal with these all concepts now? Fine. So I have assumed origin to be at the start of the motion, and x-axis along the river flow, and y-axis along the normal to the river flow. So if you write down the velocity, so velocity of the river is given by, it increases linearly from this end to this end. So we can note down it is simply V naught by d times what? Y. Okay. And y can also be written as, y means this distance, say y is this distance, so y can also be written as v into t, as y distance would be covered by the river velocity, not river velocity, by swimmer velocity. Okay, so y will be covered by the velocity of swimmer v into t. So t, y can be written as v into t. So v are v naught by d into how much? V times t. But this would remain, till 0 less than t less than d by v. इसी पॉइंट तक ये वेलोसिटी मेंटेन करेगा ना, इसके बाद फिर डिक्रीज करने लगेगा, तो फिर हमको डी बाई वी के लिए अलग इक्वेशन लिखना पड़ेगा. तो डी बाई वी के बाद का इक्वेशन क्या होगा देखो. तो अगर मान लो डी बाई वी से बड़ा टाइम लेते हैं हम लोग रिवर का, तो उस केस में फाइनली वो 2d बाई वी में क्रॉस कर रहा है ना. तो इस टाइम में क्या होगा, अब ये देखना होगा, इस टाइम में लीनियरली डिक्रीज करेगा. तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा. तो इक्वेशन लिखने के पहले आपको ये सोचना होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, राइट. तो वहाँ से वी नॉट था, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगा, तो कैसे लिखोगे, तो पहले ग्राफ प्लॉट कर लो, शायद आपको देखने में आसानी होगा. ठीक है. तो ये रिवर का वेलोसिटी है और ये मान लेते हैं y है. ठीक है. तो रिवर का वेलोसिटी v नॉट से 0 हो जाएगा. ठीक है. तो ये वाला वैल्यू v नॉट है, बट ये वाला वैल्यू कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी है ना. ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू एक्चुअल में सोचोगे तो 2d है, और ये वाला वैल्यू d है. मतलब हमने ओरिजिन को d पे शिफ्ट करा दिया है. तो d पे वेलोसिटी v नॉट है और 2d पे कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है. तो हम लोग को अब इक्वेशन लिखना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन का. ये स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2d, 0 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है v नॉट, सॉरी नॉट v नॉट, पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है. तो x कोऑर्डिनेट है d,
और उसके बाद है वी नॉट। तो दो कोऑर्डिनेट मालूम है तो उससे इक्वेशन इजीली आ जाएगा। आप लिख सकते हैं v माइनस वी नॉट इक्वल टू, स्लोप तो इस लाइन का नेगेटिव ही है, दिख ही रहा होगा, तो माइनस वी नॉट बाई डी इंटू वाई माइनस हो जाएगा कितना डी, क्योंकि हम लोग इसको पहला पॉइंट माने हैं तो y माइनस डी हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते देखते हैं क्या आता है। तो v बराबर हो जा रहा है वी नॉट प्लस, सॉरी वी नॉट माइनस, है ना, तो वी नॉट माइनस वी नॉट बाई डी इंटू वाई माइनस डी, और y हमेशा v इंटू टी होगा, तो ये फाइनल इक्वेशन होगा वी नॉट माइनस वी नॉट बाई डी होल इंटू वी टी माइनस अगेन डी। तो अब ट्रैजेक्ट्री भी तो निकालना है और टाइम ड्रिफ्ट भी निकालना है। तो ड्रिफ्ट के लिए क्या करना होगा, जो टोटल ड्रिफ्ट हमने डी लिखा था वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू डी टी, फ्रॉम ज़ीरो टू पहले लेंगे डी बाय वी, फिर अगेन वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू डी टी। अब यहाँ लेना होगा डी बाई वी से कितना, टू डी बाई वी। तो अब इंटीग्रेट कर लो। पहला वाला इक्वेशन तो आपको बता ही दिए थे कितना है, देखो पहला इक्वेशन ये रहा वी नॉट बाई डी वी टी, तो यहाँ पे वी नॉट वी बाई डी ये सब कांस्टेंट है, खाली इंटीग्रेशन करना होगा टी डी टी का फ्रॉम ज़ीरो टू कितना डी बाई वी में, फिर प्लस यहाँ पे जो इक्वेशन है वो आ रहा है वी नॉट माइनस वी नॉट बाई डी। तो आप इसको अलग अलग भी कर ही सकते हैं चाहे तो, खैर इंटीग्रेशन में पूरा ही डाल दे रहा हूँ, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई डी इंटू वी टी माइनस डी एंड देन होल इंटू कितना होगा डी टी फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो नहीं डी बाई वी नॉट वी से, अब यहाँ पे लिमिट डालोगे टू डी बाई वी, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये आंसर तो बड़ा सिंपल आता हुआ दिख रहा है, वी नॉट वी बाई डी टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो यानी ये डी स्क्वायर बाय टू वी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा, पहले वी नॉट डी टी है तो वी नॉट इंटू टू डी बाई वी माइनस डी बाई वी, तो ये भी डी बाई वी हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस वी नॉट बाई डी है और फिर ये वी टी है, तो यहाँ पे वी रहेगा और टी है, तो ये हो जाएगा टू डी है ना, तो ये हो जाएगा वन बाई टू टाइम्स थ्री डी स्क्वायर बाई कितना और वी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस है और डी है और इंटू डी टी है, तो ये डी इंटू सिंपली हो जाएगा डी बाई वी, डी इंटू डी टी, और डी डी कट ही जा रहा है तो सिंपली बहुत सिंपल सा आंसर आ रहा है, ये डी और डी कट जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा वी नॉट इंटू, तो वी नॉट इंटू आ जाएगा टू डी बाई वी माइनस डी बाई वी, सिंपली डी बाई वी। अब इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आ जाएगा हम लोगों का, ये हाफ है तो क्या क्या बच रहा है, चलो कैलकुलेट पूरा कर लेते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग का एक वी कट जा रहा है, तो ये हो जा रहा है वी नॉट डी बाय टू वी, यहाँ से आ जा रहा है, फिर प्लस यहाँ पे भी वी नॉट डी बाई वी एक बच जा रहा है, और यहाँ पे बच जा रहा है फिर माइनस में थ्री वी नॉट वी बाई टू डी बच जा रहा है, और नीचे एक और वी बच ही जाएगा, नीचे एक और वी बचेगा, राइट ओके। फिर यहाँ पे प्लस हो गया वी नॉट डी बाई वी, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जा रहा है, वी नॉट डी बाई वी, ठीक है। तो वी नॉट माइनस वी नॉट डी वी टी हमने कर ही लिया, तो फाइनल जाते जाते भी वो कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट कर गया देखो, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो फाइनल आंसर जो आ जा रहा है कैंसिल होने के बाद ये टर्म इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो फाइनल आंसर आ रहा है वी नॉट डी बाई कितना वी आ रहा है, वी नॉट डी बाई वी आ रहा है, ओके वी नॉट डी बाई वी आ जा रहा है, राइट। सो दिस इज द आंसर। एंड अब ट्रैजेक्ट्री की बात करते हैं, तो ट्रैजेक्ट्री क्या होगा, देखो ट्रैजेक्ट्री के लिए दो अलग अलग पार्ट लेना होगा आपको। तो ट्रैजेक्ट्री में y जो आ रहा है वो v इंटू टी आ रहा है, और x आ जा रहा है हम लोग का कितना v नॉट y बाय
डी इंटू टी आ जा रहा है। तो ये हो जाएगा वी नॉट बाय डी और वाई हो जाएगा फिर कितना, टी को रहने देते हैं, वाई को वाई रहने दिए, टी को लिख सकते हैं फिर से वाई बाई वी। तो ये आंसर बड़ा सिंपल सा आ गया, वी नॉट वाई स्क्वायर बाय वी इंटू डी। तो दिस इज एक्स इज रिलेटेड टू वाई, बट ये वाला कब तक के लिए होगा आपको भी पता है, ये होगा ट्रैजेक्टरी फॉर 0 लेस देन वाई लेस देन डी के लिए। और जब डी से बड़ा लेके जाएंगे तो फिर ये वाई तो यही रहेगा, बट एक्स थोड़ा चेंज करेगा, उसके बाद एक्स हो जाएगा वी नॉट माइनस वी नॉट बाई डी था इक्वेशन, अगर आप सामने देखोगे तो वी नॉट बाई डी देखोगे, फिर वी टी माइनस डी है ना, तो वी टी माइनस डी, तो वी एज इट इज रख दो, टी को लिख सकते हो वाई बाई कितना, फिर से वी माइनस डी। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर से देखो वी नॉट बाई डी प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस वी नॉट बाई डी और प्लस, तो ये 2 वी नॉट हो जाएगा। सो 2 वी नॉट माइनस वी नॉट वी, और एक वाई था ना यहाँ पे, एक और वाई रहा होगा, देखना यहाँ पे है ना, वी नॉट वी टी माइनस डी लिखा था हमने तो वाई के जगह, तो ये लिखा था हमने ना वी नॉट बाई डी वाई माइनस डी, ये रहा वाई माइनस डी, इसी में डालते बेहतर रहेगा वाई माइनस डी में। तो यहाँ पे वाई माइनस डी, वी नॉट बाई डी वाई माइनस डी, ठीक है, इसको काट लो। वी नॉट बाई डी वाई माइनस डी, तो वी नॉट 2 वी नॉट हो ही जाएगा माइनस, फिर होगा वी नॉट बाय डी और वाई का वैल्यू हो जाएगा कितना, और तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी नॉट बाई डी, और इसमें आपको मल्टीप्लाई टी भी करना पड़ेगा एक्स के लिए, तो यहाँ पे इंटू वाई और टी के जगह आपको डालना पड़ जाएगा फिर वाई बाई वी। तो ये जो पैरा ट्राजेक्ट्री आ रहा है एक्स इक्वल टू आ जा रहा है 2 वी नॉट वाई बाय वी माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर बाय डी वी। यानी जब आप ट्रैजेक्ट्री ड्रॉ करोगे रिवर का, तो पहले ट्रैजेक्ट्री रहेगा इस तरीके का, कनकेविटी अपवर्ड, ठीक है, कनकेविटी अपवर्ड रहेगा, पहले ट्रैजेक्ट्री में कनकेविटी अपवर्ड रहेगा, फिर कनकेविटी डाउनवर्ड होगा, तो इस तरीके का ट्रैजेक्ट्री आएगा। यानी इस पॉइंट तक कनकेविटी, मिड पॉइंट तक कनकेविटी अपवर्ड रहेगा और उसके बाद कनकेविटी डाउनवर्ड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टार्टिंग में ये ट्रैजेक्ट्री मान के चल रहे थे कि थ्रू आउट कनकेविटी डाउनवर्ड रहेगा, ये गलत है, पहले कनकेविटी अपवर्ड रहेगा टिल हियर और फिर डाउनवर्ड। आ गया होगा समझ में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। होप नाउ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट वर्थ सॉल्विंग, ओके।